Assalamu alaikum everyone. I'm Dr. Sana Anwar. I'm Associate Professor Clinical Microbiology, लियाकत नेशनल हॉस्पिटल कराची। आप सबको मेरी आवाज आ रही है? Yes, ma'am. Okay, thank you. Ma'am. Uh, for the next 45 minutes, we are going to discuss the sexually transmitted diseases from the infection perspective. ठीक है, जस्ट लाइक डॉक्टर इरफान said अभी के ये जो प्रेजेंटेशंस हैं हम इस तरह बनाते हैं कि आपके लेवल पे आपको जो टॉपिक है वो भी समझ आ जाए एंड दे आर मोर रेलेवेंट टू द एमसीक्यूज एट योर लेवल। ठीक है, तो वी पुट द लिमिटेड इंफॉर्मेशन, हम डिस्कस ज़्यादा करेंगे एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज आस्क मी इन द एंड। ओके, so what are STIs or what is STD? They are sexually transmitted infections or diseases, and they are usually by and large passed on from one person to another through a sexual activity. That's why we call them sexually transmitted infections. But there are certain infections that, along with the sexual activity, also are transmitted by the direct contact or through the birth canal. Some STIs can be transmitted through non-sexual means as well, that we just discussed. So what causes an STD? क्या होता है, क्या चीज अनयूजुअल होती है जिससे ये इन्फेक्शंस होते हैं? So STIs, like other diseases, are caused by microscopic organisms that are normally not present in your body. Normally जो flora होता है हर जगह का, in the entire body, in the all mucosal surfaces, we have the flora. And you know what is the significance of a normal flora in the body, which is also a very classic question that we usually ask in the MCQs. Okay, this is your protective flora, that it prevents you from getting infections, it competes, it fights with the pathogens. तो इसकी वजह से क्या होता है कि आपकी ओरल कैविटी, आपके म्यूकोजल सर्विसेज, आपकी जेनेटल ट्रैक, इसके अंदर नॉर्मली नॉर्मल फ्लोरा प्रेजेंट होता है। जब ये नॉर्मल फ्लोरा और जो इन्वेटिव पैथोजन होता है उसका डिसबैलेंस जब हो जाता है, जब आपका पैथोजन जो है वो काउंट में नॉर्मल फ्लोरा से ज्यादा हो जाता है, या फॉर सम रीजन जो नॉर्मल फ्लोरा होता है वो डिप्लीट हो जाता है, लाइक फॉर एग्जांपल ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स के बाद अक्सर ऐसा होता है, या पेशेंट जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होते हैं, जिन्होंने स्टीरॉइड्स लिए होते हैं, उनके साथ ऐसा होता है। उस सिचुएशन में ये वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दे टेक अ चांस एंड देन दे कॉज एन इन्फेक्शन। There are multiple pathogens for sexually transmitted diseases. They could be bacterial, they could be viral, parasitic, and fungal. Mostly in our part of the world, we see bacterial infections more commonly than the other infections. The most common infection that we see are Neisseria gonorrhea, chlamydia, Treponema pallidum, which is the syphilis, and Haemophilus ducrey. Among the viral pathogens, just like in the previous lecture, I was just looking at the slides. Dr. Fan also showed that human papilloma virus is cause skin manifestations. So that is how these sexually transmitted diseases are manifested, like in terms of the local reactions or in terms of the local infection. HSV type 2, which classically causes the genital herpes, and HIV. Among parasitic causes, we have Trichomonas vaginalis, which is pretty common in our part of the world, pubic lice, and scabies. These are also very common, and unfortunately, they are mostly associated with the not very good hygiene. Fungal infections, we have vaginal thrush, we have vulvovaginal candidiasis, and melanitis. Now, these infections, the parasitic and fungal infections, and also the viral infections, they can also be associated with non-sexual transmission means. So, they are not exclusively for sexually transmitted diseases, but yes, one of the route of their transmission is STD. But the first three pathogens, like Neisseria gonorrhea, chlamydia, treponema, these are classically your sexually transmitted infections. So when we talk about STDs, these are the first three bacteria that comes in our mind. So Neisseria gonorrhea, जिसको commonly हम short form में GCB अक्सर कहा जाता है, these are gram-negative diplococci. Now, unlike your gram-negative rods, which are like many, there are multiple groups in gram-negative rods, and it's a major big group. Cocci में, they are very selected population. Gram-negative cocci में, you have Neisseria gonorrhea, you have Neisseria meningitis, you have Moraxella catarrhalis, you have Acinetobacter, but ये दोनों Acinetobacter and your Moraxella,
सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं कराते। नाइजेरिया गोनोरिया, नाइजेरिया मेनिंजाइटिस, ये एक ही ग्रुप है, लेकिन मेनिंजाइटिस जैसे नाम से पता चल रहा है, तो नाइजेरिया मेनिंजाइटिस क्या कराता है? मेनिंजाइटिस कराता है। सो दैट ब्रिंग्स नाइजेरिया गोनोरिया एज एन एक्सक्लूसिवली sexually transmitted pathogen. So they are gram-negative diplococci. They have multiple serotypes, around more than 100, based on the antigenicity of their pilus protein. Now, what is pilus protein? अगर आप ये नीचे वाली पिक्चर देखें, आपको दो डिप्लोकोकाई जो किडनी बीन शेप स्ट्रक्चर्स है, इसके अराउंड में बहुत सारे थ्रेड-like structures नजर आ रहे हैं. So bacteria have certain important structures which help them cause the infection, which help them cause stain the body, and which help them cause hide from the normal complement or normal defense system of the body. तो ये जो पाइलाई होते हैं, जो thread-like structures हैं, what they do, ये organism को attach करने में help करते हैं. जितना अच्छा organism हमारी mucosa surfaces से attach करेगा, उतना ज़्यादा वो bind करके infection कराता है. ठीक है? तो जिसमें ये pilated strains जो होते हैं, जिसमें पाइलाई होता है, these are the infections of Neisseria gonorrhea which cause these infections. गोनोरिया हैज नो कैप्सूल, ये बड़ा अच्छा एमसीक्यू सवाल है. रीजन बीइंग कि आपका जो नाइजेरिया मेनिंजाइटिस है, उसका एक बड़ा अच्छा सा पॉलीसैकेराइड कैप्सूल होता है, और उस कैप्सूल को चेक करने के लिए हम एक क्विक सा लैब के अंदर लेटेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट भी करते हैं. जब हमारे पास मेनिंजाइटिस की क्वेरी आती है, मेनिंजाइटिस के लिए CSF सैंपल आता है, तो द फर्स्ट थिंग दैट कम्स इन योर माइंड कि आप जो है वो इसका कैप्सूल देख रहे होते हैं. ये बिल्कुल डिफरेंट फाइंडिंग है, इसी का काउंटर पार्ट है, इसी के ग्रुप का मेंबर है नाइजेरिया मेनिंजाइटिस, लेकिन उसके पास एक थिक पॉलीसैकेराइड कैप्सूल है. गोनोरिया डज नॉट हैव अ कैप्सूल. सो ये चीज़ MCQ में अक्सर पूछी जाती है, और स्टूडेंट्स एट टाइम्स भूल जाते हैं और इसको गलत कर देते हैं. This particular organism is sensitive to dehydration and cold environment. और यही वजह है कि ये moist और humid hot environment जो कि sexual conditions इसको favorable होती है, इसीलिए उसमें grow करता है. अगर इसको cold और dehydrated environment मिलेगा तो Neisseria gonorrhea survive नहीं करता, ये die off हो जाता है. So what are the virulence factors? As we just discussed, एक तो पाइलाई है, it mediates attachment to the mucosal surfaces, it is anti-phagocytic. अब नॉर्मल बॉडी के अंदर हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट जो मैकेनिज्म होता है किसी भी बैक्टीरिया को वहाँ से क्लीन करने के लिए, वो फैगोसाइटोसिस होता है. आपके न्यूट्रोफिल्स आते हैं, आपके अंदर सेल्स आते हैं, वो क्या करते हैं, बैक्टीरिया को ईट अप कर देते हैं, फैगोसाइटोस करते हैं, हक करके अपने अंदर ले लेते हैं. लेकिन अगर आपके बैक्टीरिया के पास ऐसे मैकेनिज्म्स हो जिससे वो एंटी फैगोसाइटिक कराए नहीं, फैगोसाइटोसिस ही ना हो, तो क्या होता है, ये ऑर्गेनिजम्स आपके जो कॉम्प्लीमेंट्री डिफेंस सिस्टम होता है बॉडी का, उससे बच जाते हैं, एंड अल्टीमेटली दे कॉज द इन्फेक्शन. नॉन पाइलेटेड स्ट्रेन्स आर एविरेंट, जैसे मैंने अभी आपको बात बताई थी कि जो चीज नाइजेरिया गोनोरिया की वो स्ट्रेन जिसके पास पाइलाई होता है अटैचमेंट के लिए, वही आपके स्ट्रेन जो होते हैं वो पैथोजेनिक होते हैं. जिनके पास पाइलाई नहीं होता वो नॉन पैथोजेनिक होते हैं. इसका मतलब वो डिजीज नहीं करा सकते. The another important virulence factor for Neisseria is endotoxin, that is lipo-oligosaccharide present in the cell wall. अब अगर हम नाइजेरिया मेनिंजाइटिस की बात करें तो उसके अंदर LPS होता है, लाइपोपॉलीसैकेराइड होता है, जिसका कैप्सूल भी होता है. इसके अंदर लाइपोपॉलीसैकेराइड होता है जो कि सेल वॉल में प्रेजेंट होता है. आपके जितने ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिजम्स हैं सबके पास लाइपोपॉलीसैकेराइड होता है, और एक ये बहुत इंपॉर्टेंट एंडोटॉक्सिन है जो एक्चुअली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का एंडोटॉक्सिन शॉक कराता है. ठीक है, तो इसके पास जो है यही एंडोटॉक्सिन होता है, बट नॉट एज अ पॉलीसैकेराइड बट एज अ ओलिगोसैकेराइड. एंड अनदर, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर MCQs. Then there are certain outer membrane proteins. There are three common outer membrane proteins, protein 1, 2, and 3. But it's the 2 which is important for the attachment to the cells. Infection will only happen once the organism binds to your mucosal surfaces. IgA proteases, they hydrolyze the secretory IgA. जहाँ जहाँ पे भी म्यूकोजल सरफेस होती है वहाँ पे secretory IgA, बॉडी का जो डिफेंस मैकेनिज्म होता है, IgA की फॉर्म में मौजूद होता है. जहाँ जहाँ पे भी आपकी जैसे म्यूकोजल ओरल कैविटी है, आपका जेनिटल ट्रैक है, आपकी सर्टेन स्टमक की लाइनिंग्स है, वहाँ पे IgA, secretory IgA मौजूद होता है. ये क्या करते हैं, जिनके पास ये प्रोटीएसेस एंजाइम होता है, ये इस secretory IgA को जाके ब्लॉक करते हैं एंड अटैचमेंट टू द म्यूकोजा को खत्म कर देते हैं. Repeated infections occur due to alteration in the pili and outer membrane protein. किसी पेशेंट को एक दफा इन्फेक्शन होता है, किसी को बार बार इन्फेक्शन होता है. तो जो ये अगेन एंड अगेन हमें इन्फेक्शन होता है, इट इज बिकॉज ऑफ द ऑल्टरेशन इन द पाइलाई. पैथोजेनेसिस,
Primarily it affects the mucosal surfaces of the urethra and cervix. जब हम कह रहे हैं कि ये is an STD, तो in females it affects the urethra and the cervical canal. Sometimes disseminated infections may also occur. So there's a localized infection leading to the disseminated infection. The most defenses against these infections are your IgA antibody, your IgG antibody, your complement proteins, and your neutrophils. And what they do is they do the phagocytosis. Repeated infections due to antigenic variation of the villi and outer membrane proteins occur that we just discussed. There are certain strains which cause this disseminated infection more than the others due to the resistance to antibodies and complement. We just discussed कि कुछ ऐसे होते हैं जो एंटीफाइगोसिटिक भी होते हैं, जो कि कॉम्प्लीमेंट को जो है वो इनहिबिट करते हैं. तो जो कॉम्प्लीमेंट को इनहिबिट करेगा और एंटीबॉडीज को इनहिबिट करेगा, ऑब्वियसली वो ज्यादा सिवियर इन्फेक्शन कराएगा, एंड दैट इज द वन विच लीड्स फ्रॉम लोकलाइज्ड टू योर मोर सिवियर एंड डिसेमिनेटेड इन्फेक्शन. पोरिन ए इन द सेल वॉल इनएक्टिवेट्स C3p. ये खास प्रॉपर्टी होती है नाइजीरिया गोनोरिया की, इसके अंदर एक प्रोटीन ए होता है जो C3p कॉम्प्लीमेंट, जो हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर है फैगोसाइटोसिस के लिए, उसको जाके इनएक्टिवेट कर देता है. सो अल्टीमेटली देयर विल बी नो कॉम्प्लीमेंट मीडिएटेड किलिंग ऑफ द बैक्टीरिया. There are certain risk factors. People who have deficiency of late complements like C6 to C9. This is again a very important MCQ question. Those people who have a late complement deficiency, C6 to C9, are more prone to have infections with Neisseria species, either gonorrhea or meningitis. Women who are they are pregnant, who are in their menstrual cycle, they are also at greater risk for disseminated infection. So first we'll discuss the localized infection. What are the clinical features? How will your patient present? It is usually symptomatic in men, but asymptomatic in women. This is one of the differentiation. In case of men, there is urethral discharge, there is dysuria, and there is epididymitis. This is the classic triad of Neisseria gonorrhea infection in men. The discharge will be purulent, it will be cloudy, they're associated with dysuria and epididymitis. In case of females, there will be purulent vaginal discharge. Now, I'm stressing on the fact that there is a purulence. There is a purulent, cloudy discharge. And I'll tell you in the next slides why I'm focusing on this factor. There is cervicitis. Ascending infection leads to salpingitis, that is inflammation of your tubes, your pelvic inflammatory disease, sterility, and ectopic pregnancy. There are infections which happen and they just being treated with your antibiotics, but there are certain infections which may be treated at a local level, but they might have the prolonged or long-term sequelae or complications. In case of Neisseria gonorrhea, this is one of the worst complications that they can have, that they cause the inflammation. Now, if you remember your normal physiology, कहीं पे भी इन्फ्लेमेशन होती है तो इन्फ्लेमेशन के बाद क्या होता है? There is a healing, there is a scar tissue. तो इसी तरह यहाँ पे भी जब फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में इन्फेक्शन होता है और वो इन्फेक्शन ऊपर यूरेथ्रा से स्टार्ट होता है, सर्वाइकल कैनाल से होता हुआ यूट्रस में, एंड फ्रॉम यूट्रस ऑन टू योर फैलोपियन ट्यूब्स एंड योर ओवरीज तक पहुंचता है. तो जब ये आपके फैलोपियन ट्यूब्स में पहुंचता है तो फैलोपियन ट्यूब्स में इन्फ्लेमेशन होती है. इन्फ्लेमेशन के बाद जब ये रिजॉल्व होता है तो क्या होता है? स्कारिंग हो जाती है. एंड दिस स्कारिंग एक्चुअली लीड्स टू योर स्टेरिलिटी के जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी, क्योंकि ऊपर से ट्यूब बंद हो जाती है और जब आपका ओवर डिसेंड कर रहा होता है तो rather than coming down to your uterus, it just stuck over there, ectopic pregnancy करा देता है. ठीक है, ये usually tuberculosis में भी हम देखते हैं कि PID होता है, sterility, और salpingitis के बाद ectopic pregnancy हो जाती है. There are other infections like anorectal infection, proctitis, pharyngitis and conjunctivitis. Usually the kids born to the mothers whose cervical canal is infected with Neisseria gonorrhea gets this conjunctivitis. And also sometimes there is डायरेक्ट हैंड टू जेनिटल एरिया, जो डायरेक्ट इन्फेक्शन कॉन्टैक्ट होता है वो भी हो जाता है. डिसेमिनेटेड गोनोकोकल इन्फेक्शंस में क्लासिक चीज होती है, देयर इज आर्थराइटिस, देयर इज टेनोसाइनोवाइटिस एंड पस्ट्यूल्स इन द स्किन. दिस यू कैन also take it as a complication of the localized infection. Those people who are prone to have disseminated infection, they can present bit later in life with arthritis, tenosynovitis and pustules in the skin. Neonates में, as we just discussed, there's ophthalma neonatorum, quite common conditions in females who are already infected, and this occurs when there is a normal vaginal delivery. So prior to the delivery, if you know that the female is suffering from this infection, then you have two options: either you treat the mother or you can
if you think that mother has quite severe infection, you can opt for cesarean section. That depends upon the history and the current situation of the patient. Otherwise, when the child is born, you can simply treat the purulent conjunctivitis with the tetracyclines. At times, there is co-infection with STDs. Now, with GC, this is very common that they present with co-infection with chlamydia. So there's in a treatment algorithm, there is a big statement that says that when you have a patient with GC, you also look for chlamydia. And when you have a patient infected with chlamydia, you also look for GC. And most of the times, we give an antibiotic therapy which covers both of these organisms, because many times these organisms coexist together in the genital tract. How do you diagnose? It's a gram-negative cocci, simple gram-negative cocci. You can see it with the gram stain. And the important thing about Neisseria gonorrhea is that you have to see this organism inside the pus cell. That is the main hallmark and diagnostic thing for Neisseria gonorrhea. It's just not that you look under the microscope और आपको बिखरे हुए कहीं पे gram negative diplococci नजर आ रहे हैं. Yes, they can be there, but you can document it as a Neisseria gonorrhea infection only when you see these gram-negative diplococci inside the pus cells. And in fact, in males, if you see these cells, this is 80% diagnostic of gonorrhea infection. But unfortunately, in females, it is not. In females, you have to go one step ahead. You have to perform a culture, or you can do the other NET testing or fluorescent antibody testing. But in males, most of the time, if you see these GNDC inside the polymorphonuclear cells, this is classical for Neisseria gonorrhea. And if there is an accompanied history of a sexual contact, of a contact with a positive partner, then it adds on to your diagnosis. So what are the samples that you take? You take urethral swab in males and you take endocervical swabs in females. Culture: classic oxidase positive colonies on Thier-Martin agar, which is the chocolate agar, but supplemented with certain antibiotics. So this is not a routine chocolate agar where you will put your Neisseria gonorrhea. It is a special type of chocolate agar, and we call it as Thier-Martin agar. Reason being that it is supplemented with antibiotics. And what are those antibiotics? Vancomycin, colistin, trimethoprim, and statin. ये चार का combination क्यों डाला है? Because हम सैंपल कहाँ से ले रहे हैं? जेनेटल ट्रैक से ले रहे हैं. जेनेटल ट्रैक नॉर्मली स्टेराइल साइट नहीं होती है. It's an unsterile site. In the beginning of this session, I told you that all these mucosal surfaces are actually covered with your oral flora, with your normal flora of the body. तो जब normal flora वहाँ पे मौजूद होगा, तो normal flora क्या है? There are organisms. जब हम normal flora वाला sample along with your pathogen plate पे लगाते हैं, जब culture media पे लगाते हैं, तो at times क्या होता है कि जो normal flora होता है वो overgrow हो जाता है और जो actual pathogen है वो inhibit हो जाता है. So when you have a media which is supplemented with these type of drugs, वो क्या करती हैं? आपका जितना oral flora होता है, either gram positive, gram negative, आपकी atypicals, आपका yeast, सबको inhibit करके they select out and help Neisseria gonorrhea to grow in the culture plate. The another important thing is that this organism is oxidase positive and it is a glucose fermenter. अगर हम Neisseria meningitis की बात करें तो वो ग्लूकोज के साथ माल्टोज भी फर्मेंट करता है, लेकिन जो Neisseria gonorrhea वो सिर्फ ग्लूकोज फर्मेंटेशन करता है. So this is important for Neisseria gonorrhea. Another thing, as you know that now we are advancing, culture के अंदर advancements आ गई हैं. So we have moved on from the culture based media to the advanced testing, and one of these testings are your fluorescent antibody staining. It means that you have an antigen antibody complex, और आप जब आप उसको fluorescent staining करते हैं तो you can see it under the dark field microscope. Then another is the nucleic acid amplification test on the urine sample. Nucleic acid amplification test क्या होते हैं? It's like a PCR based test, and where you can quickly perform this test. होता क्या है कि Neisseria gonorrhea टाइम लेता है ग्रो करने में. At times 3 days, mostly 48 to 72 hours में आ जाता है. कभी कभी अगर सैंपल में वॉल्यूम कम होता है तो देर भी लगाता है. So NAT testing or the fluorescent antibody testing, they are the quick test. Usually Western countries में ये जो obstetrician की clinic होती है, डॉक्टर की clinic होती है, वहाँ परफॉर्म होते हैं. Treatment: uncomplicated gonococcal infections की classic treatment है ceftriaxone plus azithromycin. In the previous slide, I told you that usually we give treatment which covers both chlamydia and your GC. So GC को ceftriaxone cover करेगा, chlamydia को आपकी azithromycin cover करेगी.
So this is the plate where we have this is a Thea Martin media, and you have the classic beautiful colonies of Neisseria gonorrhea. And if you pick these colonies and do a rapid oxidase test, it will be oxidase positive. And on the right side, if you see these two gram stains, ऊपर वाली स्लाइड में बिल्कुल आपको पस सेल्स नजर आ रहे हैं. पस सेल्स के अंदर छोटे 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 से ग्राम नेगेटिव डिप्लोकोकाई. अगर आप नीचे वाली स्लाइड्स में देखें, इफ यू हैव अ क्लोजर लुक, तो ये जीएनडीसी आपको पस सेल्स के अंदर बिल्कुल नजर आ रहे हैं. यू पुट द स्लाइड अंडर द माइक्रोस्कोप, यू लुक एट इट, एंड हियर यू डू द राइट डायग्नोसिस. ऑन स्पॉट डायग्नोसिस होती है दैट दिस इज नाइजेरिया गोनोरिया. अच्छा, फीमेल्स के अंदर हमें एडिशनल टेस्टिंग की क्यों जरूरत होती है? ग्राम स्टेन क्यों इनफ नहीं होती है? क्योंकि क्या होता है, नाइजेरिया की दूसरे टाइप्स भी होती है. नाइजेरिया लैक्टेमिया भी होता है. मैंने आपको बताया था कि ग्राम नेगेटिव डिप्लोकोकाई में मोरेक्सेला कैटरैलिस भी होता है. मोरेक्सेला यूजुअली जेनेटिक ट्रैक का फ्लोरा नहीं है. इट इज द फ्लोरा ऑफ योर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक. बट एट टाइम्स बिकॉज द बैक्टीरिया अपनी इकोलॉजिकल नीश चेंज करते रहते हैं, सो दिस समटाइम्स कम इन योर जेनेटिक सैंपल्स ऑल्सो, एंड दैट्स द मेन रीजन कि आपको देखने में तो वो ग्राम नेगेटिव डिप्लोकोकाई लगेगा, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये नाइजेरिया गोनोरिया है, मोरेक्सेला है, या कोई और बग है? सो दैट्स द रीजन दैट यू डू the cultures or you perform the NAT testing. Another important thing, that is your chlamydia. Acha, please remember the one point that I left in the beginning, and that was I was stressing constantly on the fact that Neisseria gonorrhea patients presents with purulent discharge. Okay, so please remember that point. Now we come on to the next pathogen, that is your chlamydia. Chlamydia are obligate intracellular bacteria. What does that mean? Now, if we would have an interactive session, probably मैं आपसे ये सवाल करती कि कौन होते हैं obligate intracellular bacteria? So obligate intracellular bacteria वो होते हैं which grow only within the cells. इन बेचारों के पास अपनी इतनी एनर्जी नहीं होती कि अपने ओन पे इन्फेक्शन कराएं, तो इनको किसी का सहारा चाहिए होता है. दे नीड समथिंग. सो इनको क्या चाहिए होता है? लाइक वायरसेस, इनको सेल चाहिए होता है. ये सेल के अंदर जाते हैं. दे आर ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर, मींस ऑब्लिगेशन है, मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है. दे हैव टू बी इनसाइड द सेल टू ग्रो. सो दीज आर ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर बैक्टीरिया व्हिच ग्रो ओनली विद इन द सेल्स. Their cell wall resembles gram-negative bacteria, but they lack the muramic acid. क्योंकि वो जो muramic acid classic हमारी gram-negative rods में होता है, वो इसके अंदर नहीं होता. They are not gram-positive. They resemble gram-negative. They are actually not gram-negative. So don't confuse it. They resemble like gram-negative. क्यों? क्योंकि जब हम स्टेन करते हैं तो उसमें gram-negative वाला कलर आता है, but they lack the muramic acid. They inhibit the lysosome fusion and reside within a membrane-bound intrusion body. That's their classic pathogenic feature. क्या करते हैं? जो नॉर्मली होता है फैगोसोम लाइसोसोम की फ्यूजन होती है, और बैक्टीरिया क्या करते हैं? उसके उस फ्यूजन को इनहिबिट करते हैं, फ्यूज ही नहीं होने देते. और क्या करते हैं? अंदर लाइसोसोम में रहते रहते हैं और वहीं पे मल्टीप्लाई होकर अपनी इंक्लूजन बॉडीज बनाते हैं. वो क्या होती है हम आगे डिस्कस करेंगे. They have group specific lipopolysaccharide antigen, जैसे हमने नाइजेरिया गोनोरिया में पढ़ा था. We have lipo-oligosaccharide antigen. Here we have lipopolysaccharide antigen. It's one of the most common of sexually transmitted diseases. Again, it's co-infection with the Neisseria gonorrhea in 30% of the people. So Neisseria gonorrhea with chlamydia, chlamydia with Neisseria gonorrhea. Remember that they have 30% of the patients co-infection. अच्छा, क्लेमिडिया की जो लाइफ साइकिल होती है वो बड़ी इंटरेस्टिंग होती है. इट्स अ डिफरेंट लाइफ साइकिल. इट इज नॉट लाइक योर नॉर्मल बैक्टीरिया. क्या होता है इसके अंदर? देयर आर टू फॉर्म्स ऑफ लाइफ साइकिल. एक साइकिल को हम एलिमेंट्री बॉडी कहते हैं, एक को हम रेटिकुलेट बॉडी कहते हैं. ऑलवेज रिमेंबर दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन. ठीक है, और अक्सर जब याद नहीं होता, समझ नहीं आता, तो स्टूडेंट्स गड़बड़ करते हैं. एलिमेंट्री बॉडी जो होती है वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर होती है, सेल के बाहर होती है. ठीक है, मेटाबॉलिकली इनर्ट होती है, उसके अंदर कोई जान नहीं होती है. वो जाके जो है वो मल्टीप्लाई नहीं कर सकती, वो अपनी ऑफस्प्रिंग नहीं बना सकती. बट दैट इज द इन्फेक्शियस फॉर्म. ठीक है, सो एलिमेंट्री इज एक्स्ट्रा सेल्यूलर, इट इज मेटाबॉलिकली इनर्ट. स्पोर लाइक जैसे हम कहते हैं ना, स्पोर्स एनवायरमेंट में होते हैं, इनर्ट होते हैं. But this is the form which is the infectious form. And what do you mean by infectious form? वो वाली फॉर्म जो जाके दूसरे सेल को इन्फेक्ट करेगी. So this is one form. Another form is the reticulate body, which is the non-infectious form. लेकिन ये जो reticulate body है, याद रखें, that is the one जो खाने पीने वाली body है. That is the one जो खा पी के बड़ी हो जाएगी, और यही क्या करेगी? binary fission से छोटी छोटी reticulate body बना के elementary bodies बनाएगी. So I'm going to read this slide so that you have a clear understanding that there are extracellular metabolically inert spore-like elementary bodies, which is infectious form. Large metabolically active reticulate body, which is the non-infectious form.
undergoes repeated cycles of binary fission to form a daughter reticulate body, which then develop into elementary bodies and released from the cell. तो क्या होगा, elementary body cell के अंदर आएगी क्योंकि वो infectious form है. अंदर आके वो क्या करेगी, it takes up lot of food from the cell, बड़ी हो जाएगी और उसके बाद क्या होगा कि binary fission से वो multiply होके small छोटी छोटी reticulate bodies बनाएगी. And these reticulate bodies ultimately transform into the elementary infectious form and they are released from the cell to infect the another cell. The site of replication appears an inclusion body which can be stained and seen microscopically for diagnosis. ये जो inclusion body है हमारी जो कि हमें diagnosis में help करेगी, ये वो चीज़ है जहाँ पे हमारी elementary body reticulate में reticulate body जहाँ ये multiplication हो रही है, that is your site. और ये हमें जब stain हम करते हैं तो हमें as a form of inclusion body नजर आती है. This is the life cycle कि आपकी elementary body है, ये अंदर जाती है कि transform होती है reticulate body में. I'm sorry. Your replication होती है reticulate body की binary fission से. There are multiple forms and ultimately क्या होता है, transformation of RB to EB, that is your elementary, and lysis of the cell होती है and the release of the elementary bodies. Please इसको याद रखिएगा. This is an important MCQ question. So which is the type of chlamydia which cause this infection? That is your chlamydia trachomatis. ठीक है, chlamydia की और भी types होती हैं. chlamydia pneumoniae होता है जो कि pneumonia कराता है. chlamydia psittaci होता है जो कि again pneumonia कराता है, especially उन patients में या उन लोगों में जिनके पास birds होते हैं बहुत सारे, especially parrots होते हैं, parrots के साथ associated होता है. पर अभी हम क्या कर रहे हैं, हम genital infection कर रहे हैं. genital infection कौन कराएगा, chlamydia trachomatis कराएगा. और उसकी D2K जो उसकी types होती है ना, ये याद रखिएगा. D2K सीरोटाइप्स जो होती हैं वो ये इन्फेक्शन कराती हैं. इन मेन नॉन पुरुलेंट वाटरी डिस्चार्ज यूरिथ्राइटिस. अब नॉन पुरुलेंट वाटरी डिस्चार्ज आ गया. ठीक है, ये क्या इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने आपको पहले बताई थी. हाउ डू यू डिफरेंशिएट जीसी फ्रॉम अदर इन्फेक्शंस. ठीक है, ये जीसी के अंदर पुरुलेंट डिस्चार्ज होता है, इस क्लेमिडिया के अंदर नॉन पुरुलेंट वाटरी डिस्चार्ज होता है. तो जब पेशेंट आता है क्लिनिशियन के पास, तो क्लिनिशियन जो इन्फ्लेमेशन तो दोनों सिचुएशंस में, तो हाउ द क्लिनिशियन इमीडिएटली डू अ क्लिनिकल डायग्नोसिस. कल्चर तो हम कराएंगे, माइक्रोस्कोपी भी कराएंगे, टेस्ट भी कराएंगे, बट कुछ आपकी जो इनिशियल डायग्नोसिस होती है वो क्लिनिकल भी होती है ना. तो क्लिनिकल डायग्नोसिस हमारी किसके ऊपर होती है, दिस टाइप ऑफ डिस्चार्ज. अगर पुरुलेंट होगा तो वी विल इमीडिएटली थिंक अबाउट दी Neisseria gonorrhea. अगर नॉन पुरुलेंट होगा विल थिंक अबाउट दी क्लेमिडिया ट्रैकोमाटिस. एपिडाइडमाइटिस कराता है, असेंडिंग इन्फेक्शन करा के प्रोस्टेटाइटिस कराता है, एंड क्योंकि आपका जो प्रोक्टस है वो उस विसिनिटी में होता है तो प्रोक्टाइटिस भी कराता है. In females, it causes vaginal discharge, again watery, not purulent discharge, cervicitis, dysuria, salpingitis, PID and infertility. Complications exactly वही हैं जो आपकी Neisseria gonorrhea की complications है. So you might have a MCQ where there's a female who presents with an infertility and they might ask you a infective cause of that infertility. ठीक है, अब immediately वो जहन में आता नहीं है कि वो क्या होगा. Somebody presents with infertility. क्यों होगी infertility? क्योंकि आपकी fallopian tubes जो है वो block हो गई हैं. क्यों block हो गई हैं? क्योंकि उसको infection हुआ था, infection के बाद scarring हो गई थी और tubes block हो गई. So we might give you a question which either have a chlamydia in the options, it might have a Neisseria gonorrhea. So इस type के question जो होते हैं clinical scenario के, वो बड़े अच्छे clinical scenarios होते हैं where you join your basic knowledge with the clinical scenario together. Infants born to infected mothers, उनमें क्या होता है, म्यूकोपुरुलेंट इंक्लूजन कंजक्टिवाइटिस होता है और क्लेमिडिया न्यूमोनाइटिस होता है. दोनों सिचुएशंस हो जाती हैं. अगर फीमेल बहुत हेविली इन्फेक्टेड है क्लेमिडिया से तो बच्चों को यूजुअली जो बच्चे बॉर्न होते हैं उनको न्यूमोनाइटिस होता है, लेकिन न्यूमोनाइटिस वो थोड़ा बाद में जाके होएगा. जो इमीडिएट बिटवीन 1 to 3 days की फाइंडिंग होती है वो कंजक्टिवाइटिस होता है, पुरुलेंट डिस्चार्ज होता है. Retus syndrome, this is one of the complication of chlamydia infection. उसमें क्या होता है, it's a triad. Urethritis होगा, arthritis होगा और uveitis होगा. So when you have all these three things together, your clinical diagnosis for Retus syndrome is pretty high. And when you take a history from the patient, your patient will say that they might have, the previous history of urethritis at some time in point with chlamydia. और ये होता क्यों है, बिकॉज दे एंटीबॉडीज फॉर्म अगेंस्ट क्लेमिडिया ट्रैकोमाटिस. जब इन्फेक्शन होगा तो एंटीबॉडीज फॉर्म होगी, तो वो जो एंटीबॉडीज होती है ना वो क्रॉस रिएक्ट करती हैं विद एंटीजेंस ऑफ योर यूरेथ्रा, joints and your uveal tract. If you remember, अगर आप लोगों ने अपनी बेसिक्स अभी रिवाइज की हैं, अगर आपको रूमेटिक फीवर याद हो, रूमेटिक फीवर में क्या होता है, रूमेटिक फीवर में यही होता है ना, इट्स दैट
आपका जो मॉलिक्यूलर मिमिक्री होती है कि वो जो ऑटो एंटीबॉडीज बन जाती हैं, ठीक है, तो वो जो ऑटो एंटीबॉडीज बन जाती हैं इसमें भी यही होता है, ठीक है, कि एंटीबॉडीज फॉर्म होती हैं क्लेमिडिया के अगेंस्ट, बट वो एंटीबॉडीज क्रॉस रिएक्ट करती हैं हमारे अपने ही सेल्स को, वो फॉरेन समझती हैं, तो हमारी अपनी एंटीबॉडी फाइट जाके करती है हमारे अपने सेल से। कौन से वाले सेल से? जो कि यूरेथ्रा में होते हैं, जो कि जॉइंट्स में होते हैं और यूवियल ट्रैक में होते हैं, ठीक है। इसने लिखा है मैडम यू आर गोइंग स्पीडी, स्लो डाउन। Chlamydia trachomatis हम कर रहे हैं, सेकेंड एसटीडी है, D2K is the important type that is important for the genital tract infection। इसमें नॉन पुरुलेंट वाटरी डिस्चार्ज होता है, कॉम्प्लिकेशन फीमेल्स में इसमें सल्पिंजाइटिस होती है, PID और इनफर्टिलिटी होती है। Infected who are born to these mothers they have mucopurulent conjunctivitis or they might have pneumonitis। इंक्लूजन बॉडीज हमें नजर आती हैं। रीटर सिंड्रोम इज अगेन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन ऑफ दीज इन्फेक्शंस, जिसके अंदर ऑटो एंटीबॉडीज क्रॉस रिएक्ट विथ योर joint cells, your uveal tract cells and your urethral cells। अच्छा, एक और टाइप होती है, इसको हम कहते हैं लिम्फोग्रैनुलोमा वेनेरियम। अभी आपने, मैं देख रही थी आपने स्किन वाले टेस्ट जो प्रेजेंटेशन थी उसमें भी इसका जिक्र आया था। ये कौन सी टाइप्स करती हैं? L1, L2, L3 करती हैं। वो जो हमें ट्रैकोमेटिस करा रहा था वो D2K सीरोटाइप्स थी। ये कौन सी वाली सीरोटाइप से? L1, L2 एंड L3। और ये क्या करती है? स्मॉल पैप्यूल्स और अल्सर्स बनाती हैं जेनिटल म्यूकोसा के ऊपर। और इसकी सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन या लेट कॉम्प्लिकेशन होती है कि यहाँ से ऑर्गेनिज्म जाके आपके लोकल लिम्फ नोड्स में जाके बैठ जाता है, तो ये लिम्फेडिनोपैथी कराता है। और अल्टीमेटली क्या होता है? फीवर होता है, हेडेक होते हैं, माइल्जिया, जो सिस्टमिक इन्फेक्शन है वो आ जाते हैं। सो इट बेसिकली स्टार्ट्स एज अल्सर और जेनिटल म्यूकोसा, लेटर ऑन इट कॉजेज द लिम्फेडिनोपैथी। नाम से ही देखिए पता चल रहा है ना, लिम्फो ग्रैनुलोमा वेनेरियम, तो आप नाम से इसको एसोसिएट करें कि ग्रैनुलोमा मतलब आपके पैप्यूल पे असर बन रहा है, लिम्फोमा आपकी लिम्फेडिनोपैथी करा रहा है। एंड दिस इज क्लासिक ऑफ क्लेमिडिया सीरोटाइप्स L1, L2 एंड L3। लैब डायग्नोसिस कैसे करेंगे? इसका हम ग्राम स्टेन नहीं करते, प्लीज रिमेंबर। क्लेमिडिया में हम ग्राम स्टेन नहीं करेंगे। क्लेमिडिया में हम जो रूटीन कल्चर होता है हमारा प्लेट्स पे वो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसलिए आई वाज स्ट्रेसिंग कॉन्स्टेंटली ऑन द फैक्ट कि क्लेमिडिया कौन सा ऑर्गेनिज्म होता है? ऑब्लिगेट इंट्रासेल्युलर बैक्टीरिया, इसको सेल चाहिए। तो ये नॉर्मल जो प्लेट मीडिया होता है हमारा माइक्रोबायोलॉजी का, जो कि कल्चर प्लेट्स होती हैं, उसमें सेल्स तो नहीं होते ना, तो इसको सेल्स चाहिए होते हैं। तो इसके लिए क्या होता है? क्लेमिडिया के लिए डिफरेंट स्ट्रैटेजी। डायरेक्ट डिटेक्शन कैसे करेंगे? मैंने आपको बताया था कि जहाँ एलिमेंट्री और रेटिकुलेट बॉडी मल्टीप्लाई होती है उनको हम क्या कहते हैं? इंक्लूजन बॉडीज कहते हैं। तो हम क्या करते हैं? वी टेक एडवांटेज ऑफ दैट मल्टीप्लिकेशन और उसी इंक्लूजन बॉडी को हम स्टेन करते हैं गिम्सा से और इम्यूनोफ्लोरेसेंस से, और फिर हम इसकी डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी करते हैं। सो दैट्स द थिंग दैट यू सी, देयर इज नो ग्राम स्टेन फॉर क्लेमिडिया। प्लीज रिमेंबर, ये सवाल ऐसा आएगा तो आप गलत कर देंगे, ठीक है। सो देयर इज नो ग्राम स्टेन फॉर क्लेमिडिया। You perform direct detection methods, that is your Giemsa stain, your immunofluorescence। और उसके अंदर आप क्या देखेंगे? साइटोप्लाज्म के अंदर इंक्लूजन बॉडीज हैं। वाई वी डोंट डू ग्राम स्टेन? बिकॉज ग्राम स्टेन तो किसके लिए होता है? ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए होता है ना, जिनकी प्रॉपर्ली वेल फॉर्म्ड सेल वॉल्स होती हैं। इनकी तो नहीं होती हैं बिकॉज दे आर ऑब्लिगेट इंट्रासेल्युलर बैक्टीरिया। ग्राम स्टेन का प्रिंसिपल ये होता है कि आपके पास या तो थिक पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर होनी चाहिए, आपके पास प्रॉपर्ली ग्राम नेगेटिव सेल वॉल होनी चाहिए। सेल स्टेन रिटेन कौन करेगा? तो इनके पास तो नहीं होते ना। तो जब आपके पास ये स्टेन होने के लिए नहीं होता, दैट्स द रीजन दैट यू परफॉर्म अनदर टेस्ट। कल्चर में हम करते हैं सेल लाइंस। सेल लाइंस के कल्चर नॉर्मली किस में होते हैं? वायरसेस में होते हैं, ठीक है। सेल लाइन की कल्चर हम वायरसेस में करते हैं। क्लेमाइडिया जो है ना वो ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म नहीं है, ये एक अलग एंटिटी है। अलग एंटिटी मीन्स इट्स द ऑब्लिगेट इंट्रासेल्युलर बैक्टीरिया। ये और बहुत सारे और होते हैं ना, अलग ग्रुप होता है ये। इसी तरह हम आगे भी करेंगे, सिफिलिस करेंगे, स्पायरोकीट्स करेंगे। स्पायरोकीट्स भी डिफरेंट होते हैं। सो दैट्स द रीजन हम इनके साथ ये रूटीन वाली कॉमन चीजें यूज नहीं करते। एक्सक्यूज मी। ओके, तो कल्चर आप करेंगे सेल लाइंस के ऊपर। देयर आर स्पेशल सेल लाइंस दैट आर परफॉर्म्ड रूटीनली। ये लैब में टेस्ट परफॉर्म नहीं होते, ये यूजुअली रिसर्च लैब्स में परफॉर्म होते हैं, और वहां परफॉर्म होते हैं जहां आपको डेफिनेटली डायग्नोसिस क्लेमिडिया की चाहिए होती है। There's another important test that is just serology, complement fixation. Complement fixation अच्छा quick test होता है, आप कर सकते हैं, but the drawback of complement fixation is that it will not speciate. आपको ये नहीं बताएगा कि क्लेमिडिया ट्रैकोमैटिस है, निमोनी है या सिटिकी है, या आपको सिर्फ क्लेमिडिया बताएगा। So probably may be done primarily just to know that it's chlamydia,
but not for your species differentiation. Then there are molecular tests, nucleic acid amplification, your PCR based test. अभी हमने पिछली स्लाइड में भी बात की थी कि now there are new tests available. अब हम बहुत एडवांस हो गए, अब हम क्विक टेस्ट करते हैं, कॉमन टेस्ट करते हैं. सो दीज आर द टेस्ट विच आर यूटिलाइज्ड यूजुअली इन द क्लिनिशियन प्रैक्टिसेस और आपकी लैब्स के अंदर जो मॉलिक्यूलर लैब्स है उसमें परफॉर्म होता है. ट्रीटमेंट टेट्रासाइक्लिन एंड मैक्रोलाइड्स. इसके अंदर हम जो है वो आपकी सेफेलोस्पोरिन्स और बीटा लैक्टम ड्रग्स नहीं देते क्योंकि ये ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर बैक्टीरिया है. तो हमें ऐसी ड्रग चाहिए जो सेल के अंदर जाके इसको टारगेट करे. सो दीज आर द टेट्रासाइक्लिन्स एंड मैक्रोलाइड्स आर द वेरी गुड एंटीबायोटिक्स जो कि सेल के अंदर जाके क्लेमिडिया को किल करते हैं. So we did Neisseria gonorrhea, we did chlamydia trachomatis. Now we are on the third important pathogen, and that is your syphilis. Now syphilis classically is caused by Treponema pallidum. Treponema pallidum is one of the member of the spirochete family. जैसे अभी पिछली उसमें आप लोग कर रहे थे ना कि लेप्टोस्पायरा होते हैं जो रेड वाइट फीवर कराते हैं और लेप्टोस्पायरा इंटरोगेंस कराते हैं. तो वो सब लेप्टोस्पायरा क्या होते हैं? वो भी स्पायरोकीट्स होते हैं. तो आपने अपनी बेसिक माइक्रोबायोलॉजी की जो बुक है अपनी जो आपने थर्ड ईयर MBBS में की होगी उसमें एक बहुत बड़ा स्पायरोकीट्स का चैप्टर है. उसमें उसके अंदर एक जो इम्पोर्टेंट मेंबर है जो STDs का मेंबर है वो सिफिलिस है. ठीक है. सो ट्रेपोनेमा पैलिडम इज योर स्पायरोकीट व्हिच कॉजेज द डिजीज सिफिलिस. They are thin walled, they are spiral, they are gram negative rods. अच्छा, इसको हम gram negative rod क्यों कहते हैं? Reason being, it takes up the stain. Its cell wall is made in such a way that it takes up the stain. तो अगर इसको stain किया जाए तो ये gram negative rod appear होता है. But they are spiral. ठीक है. इनमें कोई जैसे लेप्टोस्पायरा के लूज कॉइल्स होते हैं, सिफिलिस के जरा टाइट कॉइल्स होते हैं. तो ये तो खैर बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस प्रेजेंटेशन है, लेकिन जब आप बुक के लिए पढ़ेंगे ऑब्वियसली आपको स्पायरोकीट्स पढ़ने हैं एग्जाम के लिए. तो ये जो सिफिलिस है आपका जो ट्रेपोनेमा पैलिडम है, ट्रेपोनीम्स हम इनको कहते हैं. इसके दूसरे भी टाइप्स होते हैं, पिंटा होता है, यॉक होता है, लेकिन वो STDs नहीं कराते. पैलिडम इज द वन विच कॉज STDs. तो ये थिन वॉल्ड होते हैं, स्पाइरल होते हैं, ग्राम नेगेटिव रॉड्स होते हैं. डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी इनके लिए करते हैं. सिल्वर स्टेन और इम्यूनोफ्लोरेसेंस कहते हैं. ये सारे एडवांस टेक्निक्स हैं. तो सिफिलिस को डायग्नोसिस के लिए हमें क्या चाहिए? हम क्या करेंगे? डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी करेंगे, सिल्वर स्टेन टेस्ट करेंगे, इम्यूनोफ्लोरेसेंस करेंगे. अभी आएंगे ये सारे टेस्ट आगे. They are very slow growing, इसलिए इनका कल्चर नहीं परफॉर्म होता. They produce specific and non-specific both antibodies. ये बहुत खास बात है सिफिलिस की. क्यों? क्योंकि जब हम सिफिलिस के टेस्ट पढ़ेंगे ना तो हमें अंदाजा होगा. There are certain specific treponemal test, there are certain non-specific treponemal test. ठीक है. So they produce both type of antibodies, specific as well as non-specific. Pathogenesis. They does not have toxins. They does not produce enzymes. तो जो ये इन्फेक्शन कराते हैं, it is basically related to the inflammation of the small blood vessels. Endothelium of blood vessels infected leading to end arteritis. क्या करते हैं? आर्टरीज के एंड में जाके इन्फ्लेमेशन कराते हैं and that's how they produce infection. वरना हम पढ़ते हैं ना कि पीछे हमने पढ़ा था कि कैप्सूल होता है किसी के टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं, किसी के पाइलाई थे, किसी का LPS था, किसी का LOS था. इनके अंदर ऐसी कोई चीज नहीं होती है. They basically cause the inflammation of your arteries. What is important about syphilis is the stages of syphilis. ठीक है. syphilis अपनी stages से पहचाना जाता है. जिसको भी syphilis होता है they have to go through certain stages. किसी में ये सारे stages होते हैं, किसी में only primary secondary stages होते हैं. If you treat the patient early प्राइमरी स्टेज के अंदर तो यूजुअली सेकेंडरी तक प्रोग्रेस नहीं करता. बट इफ यू लीव द पेशेंट देन पेशेंट माइट सी all 3 different forms of syphilis. And what are those forms? We are going to see. So we have a primary syphilis, we have a secondary syphilis, we have a latent syphilis, and we have early latent syphilis. ठीक है. प्राइमरी syphilis क्या है? As the name says, प्राइमरीली जहाँ से इन्फेक्शन शुरू होगा. कैसे शुरू होगा? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है. हमारे पास जेनाइटल ट्रैक में, जेनाइटल जो हमारे एरियाज है वहाँ पे क्या होगा? किसी फॉर्म में कोई शंकर या अल्सर होगा. इसके सिफिलिस के अल्सर को क्लासिकली हम क्या कहते हैं? शंकर. तो इन्फेक्शन होने के बाद, कांटेक्ट होने के बाद विद इन 2 to 10 वीक्स, इन्फेक्शन होने के बाद विद इन 2 to 10 वीक्स क्या होता है? नो साउंड. ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाई होता है. ठीक है. अब आ रही है? पहले ठीक था मैम. पहले ठीक था. ओके. अब सही है? यस. ठीक है. ओके.
तो शंकर होता है विच इज द अर्लीस्ट फॉर्म, और शंकर आपका 2 to 10 वीक्स के अंदर जाहिर हो जाता है. एंड देन ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाई एट द साइट ऑफ इनोकुलेशन विच इज अ नॉन टेंडर अल्सर. अब इसमें ये खास बात है कि सिफिलिस में पेनलेस अल्सर होता है. प्लीज जब सवाल में स्टेम में पूछा जाए कि a 24-year-old man who had a history of positive sexual contact presents with a painless ulcer, तो पेनलेस अल्सर से पहला जवाब जो आपको जहन में आएगा वो सिफिलिस होगा, वो ट्रिपोनिमा पैलिडम होगा. ठीक है, क्योंकि पेनफुल अल्सर किसका होता है वो मैं आपको आगे नेक्स्ट बैक्टीरिया में बताऊंगी. ओके, so this is the non-tender ulcer, spontaneously heals, और spirochetes from there on spread to the bloodstream and to the other organs. क्या करता है, पहले लोकल इन्फेक्शन कराएगा, लोकल अल्सर कराएगा, जिसको हम शंकर कहते हैं. शंकर जो है वो पेनलेस अल्सर होता है. एंड फ्रॉम देयर ऑन ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे गो टू योर ब्लड स्ट्रीम एंड गो टू दी अनदर साइट्स. जब प्राइमरी साइट से इन्फेक्शन निकल के दूसरी साइट्स पे जाता है तो हम उसको क्या कहते हैं, सेकेंडरी इन्फेक्शन. एंड दैट इज द सेकेंडरी स्टेज ऑफ syphilis which occurs roughly about 90 days and 3 months of time. Now this chancre will develop into a maculopapular rash on the palms, on the sole, moist lesion of the genitals, which are rich in spirochetes. भरे हुए होते हैं ट्रेपोनिमा पैलिडम वहाँ से अगर आप सैंपल निकाल के उसकी डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी करेंगे तो आपको भरे हुए सारे जो है ना स्पायरोकीट्स अपने स्पाइरल फॉर्म्स में नजर आएंगे. मैक्सिमम जो होती है वहाँ पे इस वक्त उसकी डेंस बैक्टीरिया जमा होते हैं. एंड दैट इज ऑल्सो द साइट जब हाइएस्ट ट्रांसमिशन होती है उसकी फ्रॉम वन पार्टनर टू दी अनदर पार्टनर. ठीक है, और उस वाले मैक्युलोपैपुलर रैश को या जो जेनिटल एरिया में जो चीज बन जाता है उसको हम कॉन्डाइलोमेटा लेटा बोलते हैं. इसका एक नाम है कॉन्डाइलोमेटा लेटा. लेटेंट सिफिलिस क्या होता है, व्हेन देयर आर नो लीजन्स. अब थर्ड स्टेज वो होती है लेटेंट में जिसमें लीजन्स नहीं होते, बट आपके जो टेस्ट होते हैं, जो आपके सीरोलॉजिकल टेस्ट होते हैं वो सारे पॉजिटिव आते हैं. ठीक है, यू हैव नो लीजन्स on the genitalia, but if you perform the serology of this patient sample, you have a positive serology indicating that this patient have a continuous infection. ठीक है, then comes your early latent infection. early latent infection क्या होता है, 1 to 2 years later. ठीक है, पेशेंट के सिम्टम्स आते हैं फिर वापस चले जाते हैं, आते हैं फिर वापस चले जाते हैं. एंड प्लीज रिमेंबर दैट ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड पेशेंट इज इन्फेक्शियस. ठीक है, आपके थ्रू आउट प्राइमरी से लेकर अर्ली तक की जितनी स्टेजेस हैं इसमें आपका पेशेंट इन्फेक्शियस है. अब क्या इंपॉर्टेंट बात है पेशेंट इन्फेक्शियस है, ये इंपॉर्टेंट बात है, हम एसटीडीज कर रहे हैं ना, तो इस पूरे टाइम के ऊपर योर पेशेंट is prone to pass the infection from himself to the partner or to whoever. ठीक है, तो वो जो नेक्स्ट ट्रांसमिशन वाला फेज है ना ये कंटिन्यू होता है. एंड दिस इज इंपॉर्टेंट कि जब हमारे पास सिफिलिस के पेशेंट्स आते हैं तो हम उनसे कहते हैं पार्टनर नोटिफिकेशन, कि अगर आपको सिफिलिस है और आप इन एक्टिव स्टेजेस के अंदर है तो आपने पार्टनर को नोटिफाई करें दैट यू आर सफरिंग फ्रॉम द डिजीज सो दैट द प्रॉपर एंड अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक थेरेपी कैन बी गिवन बोथ टू द पेशेंट एंड टू द पार्टनर ऑफ द पेशेंट. ठीक है, so primary syphilis, you had a chancre, you had a painless ulcer which heals spontaneously, but your bacteria went into the bloodstream में जाके infects other organs of the body within the 3 months of the time. और अब क्या होगा, maculopapular rash होगा your palms पे, soles पे, and also a condylomata later on your genitals. Third stage latent syphilis जिसके अंदर क्या होगा, every lesion is gone but your patient is still serologically positive for syphilis. It means he is still multiplying the spirochetes inside the body. Early latent 1 to 2 years later. Symptoms during this time period जो latent or early latent होता है, इसमें patient might come to you after 6 months, might come to you after 3 months. कभी इन्फेक्शन होगा, कभी इन्फेक्शन रिजॉल्व हो जाएगा, but your patient is infectious. This you have to remember. Late में क्या होगा ना, late is the situation when the patient does not have symptoms and he is not infectious. So late is the term when your patient is non-infectious. हम MCQ में अक्सर इस टाइप के स्टेप्स पूछते हैं that your patient has syphilis for example or 3 years back and it has been treated and now can the patient transmit the infections XYZ नीचे स्टेम बना के. तो ये आप याद रखिएगा कि लेट के अंदर जो है वो पेशेंट नॉन इन्फेक्शियस होता है, इससे पहले जितनी स्टेजेस हैं ही इज इन्फेक्शियस. टर्शरी सिफिलिस जिसमें गमा फॉर्मेशन होती है, ग्रैनुलेशन हो जाती है ऑन द स्किन, बोन एंड सीएनएस, इसमें आपको जो है वो न्यूरोसिफिलिस मिलता है कि इतना ज्यादा इन्फेक्शन हो जाता है टर्शरी सिफिलिस कि अल्टीमेटली आपके सीएनएस को इन्वॉल्व करता है, आपकी बोन्स को इन्वॉल्व करता है, स्किन को इन्वॉल्व करता है, एंड दैट्स द हाईएस्ट और द लास्ट स्टेज ऑफ सिफिलिस. There is another infection that is congenital syphilis. तो हम बात कर रहे थे कि STDs जो होती हैं वो direct 1-to-1 transmit होती हैं. Sometimes they pass through the direct contact and also from the
birth canal. So congenital syphilis is one of the type which is passed on to the neonate from the mother's birth canal. अच्छा, इसमें there are early symptoms and there are late symptoms. So when the child is born, initially first 3-4 weeks तक आपको पता नहीं चलता. Later on, the kid will develop characteristic vesiculobullous eruptions, ठीक है, और a macular copper color का एक typical rash होता है which is diagnostic of hallmark for congenital syphilis, ठीक है. Patient can also have most of the time generalized lymphadenopathy, hepatosplenomegaly. Later on, kids can also develop meningitis, chorioiditis, hydrocephalus and seizures. ये सारे early congenital syphilis के symptoms होते हैं. Late, which occurs आफ्टर मंथ्स टाइम, उसमें क्या होगा, गमेटस अल्सर्स होते हैं, इंटरस्टिशियल कैरेटाइटिस होता है, सेंसरी न्यूरल डेफनेस होती है. क्या होता है, फ्लैटनिंग ऑफ दी जो रिजेस होती हैं आपकी पैरेटल बोन्स की वो हो जाते हैं. आपकी जो फीमर बोन होती है, जो टिबिया होती है, उसमें जो है आपको ओपेसिटीज नजर आती हैं जिसको हम सेबर शिन कहते हैं. सो दैट इज अ क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड infection. So congenital syphilis is not a good news because if the mother's vaginal canal has a high flora, बहुत ज़्यादा नंबर था अगर उस वक्त ऑर्गेनिज्म का, तो ये ट्रांसमिट तो दोनों सिचुएशंस में होता है. पर जितना ज़्यादा बच्चा जो है वो एक्सपोज होगा हाई लोड ऑफ बैक्टीरिया से, उतना ज़्यादा उसको अर्ली सिम्टम्स डेवलप होंगे. लेबोरेटरी में कैसे डायग्नोस करेंगे, तो हमने देखा कि जी ये स्पायरोकीट्स होते हैं, दे आर लाइक ग्राम नेगेटिव रॉड्स. हम इसकी डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी करते हैं. दे प्रेजेंट विद 3 डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेजेस. दे हैव योर प्राइमरी सिफिलिस, योर सेकेंडरी सिफिलिस, योर लेटेंट फॉर्म्स एंड योर टर्शियरी फॉर्म्स. You might have a congenital syphilis if the mother is infected. So now another important component is how do you diagnose syphilis in the lab. So in the microscopy, you do the dark field or direct fluorescent antibody to demonstrate the spirochetes in the chancre or condylometer later. प्रीवियस स्लाइड्स में मैंने आपको बताया था कि जब ये शंकर होता है या कॉन्डाइलोमेटर लेटा होता है तो उसके अंदर बहुत सारे स्पायरोकीट्स होते हैं. सो दिस इज़ वेरी डायग्नोस्टिक. अगर आप वहाँ से सैंपल लेके और उसको आप डायरेक्ट फीड एंटीबॉडी टेस्ट करें या डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी करें तो आपको स्पायरोकीट्स फौरन नजर आ जाते हैं. नेक्स्ट स्लाइड में मेरे पास पिक्चर है, मैं आपको पिक्चर भी शो करूंगी. देन दे आर नॉन स्पेसिफिक सीरोलॉजिकल टेस्ट. अब ये कौन सी वाली सिचुएशन है जब हम कह रहे थे कि पेशेंट लेटेंट स्टेज में होगा, उसको कोई सिम्टम नहीं होगा बट नॉन स्पेसिफिक सीरोलॉजी इसकी पॉजिटिव आएगी. तो नॉन स्पेसिफिक सीरोलॉजी को हम क्या कहते हैं, नॉन ट्रिपोनिमल एंटीजेंस या कार्डियोलिपिन फ्रॉम बीफ हार्ट, दे रिएक्ट विद द एंटीबॉडीज फाउंड इन द पेशेंट सीरम. ये एक टिपिकल टेस्ट का रिएक्शन है. दिस हैज नथिंग टू डू विद द सिफिलिस. सिफिलिस के अंदर क्या ये चीज होती है कि जो ये एंटीबॉडीज होती है पेशेंट सीरम के अंदर, उसको क्या करता है, कोगुलेट करता है, ठीक है, लाइक एन एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है ना. लेकिन क्या खास बात होती है कि जो नॉन ट्रिपोनिमल एंटीजेंस होती है ना, वो क्या करती है, कार्डियोलिपिन जो कि बीफ हार्ट में मौजूद होता है, ये उनको बाइंड करती है. तो नॉर्मली हमारी जो सीरम में एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट होता है सिफिलिस के लिए, उसको पिक करना बहुत मुश्किल होता है. तो हम क्या करते हैं, एक एडिशनल टैगिंग, एक एडिशनल नॉन ट्रिपोनिमल एंटीजन जो कि हमारे पास कमर्शियली प्रिपेयर्ड लैब में होता है, जो कि कार्डियोलिपिन सेगमेंट ऑफ द बीफ हार्ट में होती है, ये सारी नॉन ट्रिपोनिमल एंटीजेंस. इनको हम क्या करते हैं, एक लेबल्ड फ्लोरोसेंट एंटीबॉडी से बाइंड करते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको पेशेंट के सीरम के साथ कंबाइन कर देते हैं. अगर पेशेंट के सीरम में ट्रिपोनिमल एंटीबॉडीज मौजूद होती हैं तो वो उस एंटीजन कॉम्प्लेक्स के साथ जाके मिल जाता है और आपके पास स्लाइड में एग्लूटिनेशन नजर आती है. हमें कैसे पता चलेगा, हमें एग्लूटिनेशन की फॉर्म में पता चलेगा. और अगर जिसकी बॉडी के अंदर सिफिलिस नहीं होगा, एंटी सिफिलिस एंटीबॉडीज नहीं होंगी, वो उस एंटीजन कॉम्प्लेक्स के साथ बाइंड नहीं करेगा, आपके टेस्ट में एग्लूटिनेशन नहीं होगी और टेस्ट जो है वो नॉन रिएक्टिव होगा. ये नॉन स्पेसिफिक टेस्ट है. इसका मतलब ये है कि ये 100% इंडिकेट नहीं करते कि इसको सिफिलिस है, बट येस इफ दे आर पॉजिटिव वी गो अहेड फॉर द स्पेसिफिक सीरोलॉजी. द टाइटर ऑफ दिस टेस्ट डिक्रीज विद ट्रीटमेंट. जैसे जैसे आप मरीज को ट्रीटमेंट देंगे, इन टेस्ट का जो टाइटर होता है वो डिक्रीज होता जाता है. बिकम नेगेटिव आफ्टर ट्रीटमेंट, सो कैन बी यूज्ड टू डिटरमिन द इफेक्ट ऑफ ट्रीटमेंट. आप इन टाइटर्स से बेसिकली मॉनिटर करते हैं कि पेशेंट आपका एंटीबायोटिक थेरेपी को रिस्पॉन्स कर रहा है या नहीं कर रहा. लेकिन इसको कंफर्म हम कैसे करेंगे, इसको कंफर्म हम करेंगे कंफर्मेटरी टेस्ट से, जो कि अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे. सो दिस इज द VDRL टेस्ट, वेनरल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी टेस्ट, जो कि हमने कहा कि नॉन स्पेसिफिक सीरोलॉजी है. आप देखें इसमें आपको एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड पे नॉन रिएक्टिव सैंपल है. आपने एंटीजन एंटीबॉडी को मिक्स किया, देयर इज नो विजिबल क्लम्पिंग. सो व्हेन देयर इज नो विजिबल क्लम्पिंग इट मींस इट इज नॉन रिएक्टिव.
when you have a reaction, लेकिन reaction है लेकिन इतनी intensity का reaction नहीं है, so we call it as a weakly reactive. And then finally in the last slide you have a strongly reactive sample. ठीक है, बहुत ज़्यादा major clumping हो रही है, so your VTRL test is positive. What are the specific serological tests? Specific serological tests वो होते हैं जो कि targeted Treponema pallidum के against ही use किए जाते हैं, and that is your fluorescent antibody, treponemal antibody test, and your treponemal heme agglutination test, TPHA, FTABS, commonly caused as specific serological test for treponema pallidum. और इसकी क्या खास बात होती है कि these antibodies remain positive for life even after effective treatment, so they cannot be used to check the response of the treatment. Common MCQ question हम आपको पूछेंगे, usually ये पूछा जाता है कि which test gives you monitoring of the effective treatment? तो मॉनिटरिंग ऑफ द इफेक्टिव ट्रीटमेंट में आप किसको टिक करेंगे? नीचे हम लिखेंगे FTABS, हम TPHA लिखेंगे, हम VDR लिखेंगे, हम नॉन स्पेसिफिक सीरोलॉजी लिखेंगे, तो आप किसको टिक करेंगे? तो इफेक्टिव ट्रीटमेंट के लिए क्या होता है, बाज़ औक़ात स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, वो समझते हैं इफेक्टिव ट्रीटमेंट का रिस्पॉन्स मॉनिटर करने के लिए हमें किसको टिक करना है, जो कि स्पेसिफिक टेस्ट है. नो, स्पेसिफिक टेस्ट आपका फॉरएवर पॉजिटिव रहेगा. तो ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स हम स्पेसिफिक टेस्ट से नहीं देखेंगे, ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स हम किस देखेंगे, आपके नॉन स्पेसिफिक. दीज टाइटर ऑफ दीज टेस्ट डिक्रीज विद ट्रीटमेंट. तो क्या होगा कि अगर किसी का 1:2 350 का टाइटर है, अगर ट्रीटमेंट दी, ट्रीटमेंट के बाद 1:50 का टाइटर हो गया, 1:30 का टाइटर हो गया, इट मींस योर पेशेंट इज रिस्पॉन्डिंग. बट फॉर एग्जांपल इफ योर पेशेंट का प्राइमरी टाइटर था 1:300 और अब आया वो 1:600 के साथ, तो इसका क्या मतलब है कि पेशेंट इज फेलिंग द थेरेपी. तो ये टेस्ट जो होते हैं वो आपके ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स को मॉनिटर करने के लिए यूज होते हैं, जो कि नॉन स्पेसिफिक होते हैं. और स्पेसिफिक होते हैं आपकी डायग्नोसिस के लिए, जब आपको 100% मेक श्योर करना होता है कि दिस पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम ट्रिपोनेमा पैलिडम, तो आप स्पेसिफिक टेस्ट करते हैं. बट क्योंकि ये टेस्ट सारी जिंदगी पॉजिटिव रहते हैं, तो इनको आप ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स के लिए नहीं देख सकते. ये जो इसका पिक्चर आपको नजर आ रही है, देखिए ये स्पायरोकीट्स है, ये स्पाइरल फॉर्म में होते हैं, इनके पास फ्लैजुला होता है, इनके आउटर मेम्ब्रेन होती है, इनके पास प्रोटोप्लाज्मिक सिलेंडर होता है. सो दिस इज हाउ दे अपीयर, लिटिल डिफरेंट फ्रॉम द regular gram negative or regular organisms. And they have outer membrane, they have flagella, they have periplasmic space, they have peptide glycan की थोड़ी सी layer and a small cytoplasmic layer. And on the basis of these features हम कहते हैं कि they are gram negative. हम Chlamydia को नहीं कह रहे थे ना gram negative, because के अंदर ये सारी चीजें नहीं थी. The classic diagnostic test जिसको मैं भी आपको बता रही थी, that is fluorescent treponemal antibody test. That is one जो कि आपको black background के साथ ऊपर ये जो apple color नजर आ रहे हैं, these are the ones जो कि फ्लोरिस करेंगे, चमकेंगे. ठीक है, हम चमकने वाली फ्लोरेसेंट डाइस के साथ टैग करते हैं, ताकि जब हम माइक्रोस्कोप में, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप में देखें, तो आपको सारे डार्क बैकग्राउंड के अंदर ये चमकते हुए स्पाइरल फॉर्म्स में आपको ये ट्रेपोनेमा पैलिडम नजर आते हैं, विच इज योर डायग्नोस्टिक. ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस, ऑलवेज रिमेंबर, बिल्कुल पक्का याद होना चाहिए कि सिफिलिस की ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इज योर पेनिसिलिन, योर बेंजाथीन पेनिसिलिन. ठीक है, सिंगल शॉट 1 डोज ऑफ बेंजाथीन पेनिसिलिन इज इनफ. अनफॉर्चुनेटली कुछ पेशेंट्स को जो है वो बेंजाथीन पेनिसिलिन से एलर्जी होती है, या अनअवेलेबिलिटी, और देयर आर एनी अदर इश्यूज, और रेजिस्टेंस का इशू है, ऑल्दो नहीं होता बट बहुत कम है, लेकिन अगर रेजिस्टेंस का इशू है या टॉलरेबिलिटी बीटा लैक्टम ड्रग्स की या पेनिसिलिन एलर्जी है, तो सिचुएशन में आप अल्टरनेटिव में एजिथ्रोमाइसिन और डॉक्सीसाइक्लिन देते हैं. पेनिसिलिन आप सिंगल शॉट देते हैं, डॉक्सी और एजिथ्रोमाइसिन आपको एटलीस्ट 2 वीक्स, दैट इज 15 डेज आपको देनी पड़ती है. ठीक है, सो दीज वर योर 3 प्राइमरी पैथोजेंस विच वर एक्चुअली बीइंग आस्क्ड बाय CPSP टू कवर. जिन तीनों को मैंने भी कवर कर दिया. मैं क्विकली एक स्लाइड आपको दिखाऊंगी अदर इंपॉर्टेंट पैथोजेंस, जिसका मैंने सिर्फ शुरू में जिक्र किया था. एक आपका HPV है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस. पैपिलोमा वायरस में अगर आप ये याद रखें कि ये DNA वायरस होता है, लेकिन इसकी सर्टेन टाइप्स होती हैं, 6 and 11 and 16 and 18, which are strongly associated with your malignancy and carcinoma of the genital tract. ये genital lesions भी कराते हैं, जिसको हम कंडाइलोमेटा अक्यूमिनेटा कहते हैं, और ये मेलिग्नेंसी भी कराते हैं. ठीक है, क्योंकि ये वायरस है, इसका हम कल्चर नहीं करते, हम इसको PCR या मॉलिक्यूलर टेस्ट की बेसिस के ऊपर हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं, या हम क्या करते हैं, बायोप्सी सैंपल के अंदर हम जो साइटोपैथिक इफेक्ट होता है या इंटरन्यूक्लियर इन्फ्लूजन्स होती हैं, हम वो देखते हैं. ठीक है, हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस आपने पिछले वाले सेशन में भी किया था कि हर्पीज सिम्प्लेक्स टाइप 2 आपके जेनिटल इन्फेक्शंस कराता है. आपको पिक्चर दिखाई थी डॉक्टर इरफान ने कि हर्पीज सिम्प्लेक्स 1 जो है वो लेबियलिस अराउंड द माउथ इन्फेक्शन कराता है, जो 2 है वो आपके कौन सा इन्फेक्शन कराता है, जेनिटल ट्रैक्ट इन्फेक्शन कराता है. सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट मेंबर ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस.
Haemophilus ducrei. It is the third member, which is your bacteria, and it causes chancroid. Syphilis क्या करा रहा था? शंकर करा रहा था. This cause chancroid. It's a painful genital ulcer. मैंने आपको वहाँ बात बताई थी कि syphilis की क्या खास बात आपको याद रखने की है कि syphilis में painless ulcer होगा. Patient आएगा, young patient with a positive history, but will have a painless ulcer. So painless ulcer please लिख लें अपने पास, याद कर लें. जब books में revise करेंगे इसको highlight कर लें. So syphilis is a chancre, which is a painless ulcer. Haemophilus ducrei will cause chancroid, which is a very severe painful genital ulcer which is associated with your inguinal lymphadenopathy. Haemophilus ducrei आपका ग्राम नेगेटिव कोकोबैसिलाई होता है, जैसे आपका हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा होता है, उसी ग्रुप का मेंबर है, लेकिन ये क्या कराता है? डुक्री classically causes the genital infections. It's a gram negative कोकोबैसिला isolated from ulcers and lymph node aspirates. क्या कराता है? पहले genital ulcer कराता है, उसके बाद क्लेमिडिया की तरह जाके lymph nodes में बैठ जाता है, और जब lymph nodes में होता है तो वहां से भी aspirate करके इसकी ग्राम्स बना के देख सकते हैं, and we can see it directly from the ulcer. Treatment of choice इसकी क्या होती है? Tetracycline and erythromycin, which is very good for Haemophilus ducrei. The last but not the least, हमने कहा था कुछ पैरासाइट्स भी होते हैं जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होते हैं, जिसमें ट्रैकोमोनास वैजिनालिस इज वन ऑफ द कॉमनेस्ट. ये फीमेल्स में होता है ज्यादा. पियर शेप प्रोटोजोन पैरासाइट है आपका. इसका एक सेंट्रल न्यूक्लियस होता है, इसके 4 फ्लैजिला होते हैं. इट अकर्स ओनली इन द फॉर्म ऑफ अ ट्रोफोसाइट. इसकी सिस्ट फॉर्म नहीं होती है, ठीक है. बेसिकली लार्जली फीमेल्स में ज्यादा कराता है, बट एट टाइम्स इट कैन ऑल्सो प्रेजेंट इन द प्रोस्टेट ऑल्सो. माइक्रोस्कोपी इसकी टिपिकल डायग्नोस्टिक है. ये जो पिक्चर मैंने लगाई हुई है, इसी पिक्चर की फॉर्म में ट्रैकोमोनास में नजर आता है. ट्विचिंग मोबिलिटी होती है, बहुत फास्ट ट्विचिंग एली मोबाइल होता है, जैसे कोई गुलाटियां नहीं खाता, इस तरह गुलाटियां खाता हुआ आपको नजर आता है. ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस मेट्रोनिडाजोल, बहुत अच्छी इफेक्टिव ट्रीटमेंट होती है. 5 days की थेरेपी होती है, एंड यूजुअली पेशेंट बिकम्स फाइन. ठीक है. सो दैट वाज द लास्ट स्लाइड. योर प्राइमरीली एसटीडी के जो पैथोजेंस हमने आज किए वो 3 थे. आपका नेज़िलिया गोनोरिया था, क्लेमिडिया ट्रैकोमैटिस था, और आपका सिफिलिस था. ये बाकी मैंने क्विकली आपको करा लिया क्योंकि ये भी आ सकते हैं, एट टाइम्स ये डिफरेंशियल्स में होते हैं. डिक्री को कराना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि आपको पेनफुल और पेनलेस अल्सर की पहचान हो, कि ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस होते हैं जो अक्सर एग्जाम्स में आते हैं. ठीक है. थैंक यू सो मच. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, आई थिंक मोस्टली I have answered most of the questions. Yes, chat box में जो questions थे, which one is? यस, लिम्फोग्रैनुलोमा वेनेरिनम में पेंसिल अल्सर होते हैं, लेकिन लिम्फोग्रैनुलोमा वेनेरिनम जब तक आपके पास आएगा ना, उसको जो है वो हो चुका होता है, मतलब आपके जो गमाज होते हैं ना, लिम्फेडेनोपैथी बन चुकी होती है. तो आपका बड़ा वो क्लासिक सिम्टम होता है जिसके ऊपर आप उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं. ठीक है. किसी ने लिखा यस यू क्राई विद डुक्री. यस, डुक्री इज अ वेरी पेनफुल फॉर्म जिसके अंदर पेशेंट प्रेजेंट्स विद सिवियर पेन. विच वन इज कॉमन? ये मुझे नजर नहीं आ रहा चैट बॉक्स इनका पूरा. एक्सपेंड हो सकता है. I can't see the question completely. Which one is common? Okay, which one is common? Okay, which one is more common? Okay. So gonorrhea is more common in certain parts of the world, and chlamydia is more common in certain parts of the world. ठीक है. तो आपकी किताबों में लिखा हुआ है that chlamydia trachomatis is one of the commonest cause of genital tract infections. ठीक है. लेकिन क्योंकि ये STDs co-infected होती हैं, तो at times हमें पता नहीं चलता. हम क्या करते हैं, chlamydia के साथ पेशेंट आता है तो GC के लिए ऑटोमेटिकली ट्रीट कर देते हैं, और अगर GC के लिए आता है तो chlamydia के लिए ट्रीट करते हैं. तो जो एग्जैक्ट स्टैट्स होती है ना, उसमें at times जो है वो बायस हो जाता है. So that's the reason. For syphilis आपका जो है वो आपके उसमें जो हमने कहा था कि जेनिटल ट्रैक्ट से होता है syphilis. ठीक है. सिफिलिस आपके बर्थ कैनाल से होता है, और अभी रिसेंटली लास्ट 2 decades में हमने ये भी देखा है कि वी हैव स्टार्टेड टू स्क्रीन ब्लड, जो डोनेटेड ब्लड होता है, जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन होती है, उसको भी हम जो है वो सिफिलिस के लिए स्क्रीन करते हैं. क्योंकि अगर कोई पेशेंट जिसको टर्शरी सिफिलिस है या जिसके ब्लड के अंदर हाई लेवल ऑफ ट्रेपोनिन्स है, और अगर वो ब्लड किसी को ट्रांसफ्यूज कर दे, तो दैट इज वन ऑफ द कॉज कि उससे जो है वो ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड ट्रांसमिशन हो सकती है. बट प्राइमरीली सिफिलिस इज द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन.
ठीक है. If you suffer from syphilis again and again, what's the treatment? Yes, it's a very good question. There's an entire STD guideline available. Probably not at your level, but well, as a clinical microbiologist, I'm going to answer. आप बेंजाथीन पेनिसिलिन के ही डिपॉट्स लगा देते हैं, ठीक है. That's a slow release penicillin उन पेशेंट्स के अंदर जिनको repeated infections होते हैं, ठीक है. तो they sort of get benefit from it. जिनमें नहीं दे सकते उनमें जो alternate therapies मैंने आपको बताई थी कि हम azithromycin या doxycycline यूज करते हैं. We try and ask the patient in during this time period does the patient had changed the sexual partner or कोई ऐसी activity which has led the patient in a in a position where he is getting the infection again and again. Painless indurated ulcer over the penis with everted margins, it is primary syphilis. It can be primary syphilis, but everted margins जो होती हैं वो हो सकती हैं, but इसकी other differentials भी होते हैं. जैसे herpes की कुछ forms में भी आपको जो infection होता है वो इस type से नजर आता है. Do we perform any test or consider it chlamydia? Non-purulent discharge. Yes, you look for all STDs. अगर आपके पास non-purulent discharge है, आप chlamydia के लिए देखते हैं, उसके बाद आप दूसरे STDs के लिए भी देखते हैं. आप उनको जो है वो viral causes के लिए भी exclude करते हैं. At times, जैसे fungal मैंने आपको first slide बताई थी. अब fungal के अंदर होता क्या है? It's a very classic different discharge. अगर किसी को जो है वो severe candidal infection है and it has been transmitted from one partner to another partner might be immunocompromised diabetic, तो thick curdy white discharge होता है. So discharge has different types on the basis of which you can diagnose, but that is more of a clinical diagnosis. Probably at your level or from the microbiological perspective, please focus more on the laboratory diagnostics. ठीक है, ये वाले जो फीचर होते हैं other than the classic, आपका शंक्रोइड है, आपका शंकर का पेनलेस अल्सर है, आपका पुरुलेंट नॉन पुरुलेंट डिस्चार्ज है, but more diagnosis आपके लिए डिपेंड करती है, वो इसके ऊपर डिपेंड करती है जो आपकी लैब डायग्नोसिस है. In paper, I've asked about the commonness in Pakistan. We will choose chlamydia. I don't think so that somebody will ask about this because Pakistan में इतने stats वाली studies perform ही नहीं हुई हैं. ठीक है. Hello, any more question, please? Yes, ma'am. Ma'am, what is the best method for diagnosis of congenital syphilis? ओके, गुड क्वेश्चन. कॉन्जेनाइटल सिफिलिस जो है ना हम दो तरीके से देख सकते हैं. एक तो जब आपका जो नियोनेट है, जब म्यूकोपोरिलिन वेजिक्यूपुला है, वो जो एक कॉपर कलर के जो पस्चूल्स के साथ जब आएगा ना, आप वहां से बायोप्सी सैंपल भी ले सकते हैं. आप वहां से जो है वो फ्लोरोसेंट स्टेनिंग के लिए भी सैंपल ले सकते हैं. एंड दूसरा सेरोलॉजी. ठीक है, सेरोलॉजी यू कैन, क्योंकि अगर आपका जो पेशेंट है कमिंग इन द लेट स्टेज, इसका मतलब ये कि ब्लड के अंदर सारा ट्रिपोनियम पैलिडम फैल चुका है. सो यू कैन डू बोथ टेस्ट. यू कैन डू द नॉन स्पेसिफिक सेरोलॉजी एज वेल एज यू कैन डू द स्पेसिफिक सेरोलॉजी. और दूसरा ये होता है कि नियोनेट्स के अंदर हमें बाय द टाइम पेशेंट डेवलप्स, हमारे पास मदर की इंफॉर्मेशन ऑलरेडी होती है. तो यूजुअली हम बच्चों को इस टाइम के ऊपर बिटवीन दी 3rd month and 6 months हम इनको पूरे तरीके से स्क्रीन कर चुके होते हैं. बट दैट्स योर सेरोलॉजी. if the patient has pustules, directly biopsy sample and your direct fluorescent staining जो हम स्टेनिंग करते हैं, वो दोनों सैंपल्स हम ले सकते हैं. तो डायरेक्ट सैंपल पस्टूल से भी ले सकते हैं एंड सेरोलॉजिकल डायग्नोसिस दोनों कर सकते हैं कॉन्जेनाइटल के लिए. Okay, ma'am, there is one more question, please. There is a scenario. There is a pregnant gravida in her second trimester who felt sudden lower abdomen severe cramp. It was followed by a watery, foul-smelling discharge. After 2 days, she delivered a stillborn child. On examination, chorion and placenta have neutrophilic infiltration. So, what could be the likely organism? Like a foul smelling discharge leading with the IUD, there can be many causes. ठीक है, started from the very basics. Even E. coli, commonest organism of UTI. E. coli अगर किसी को intrapartum हो जाए, severe infection, it will give you chorioamnionitis and ultimately leads to a fatal outcome. Anaerobic infection, ठीक है, आपके जितने ये सिवियर एनारोब्स होते हैं ये सारे एनारोब्स कराते हैं. सिफिलिस एज पर स्टिल बर्थ नहीं कराता है. सिफिलिस के साथ जो है वो कॉम्प्लिकेशंस एसोसिएटेड होती है, कॉन्जेनाइटल एनोमलीज एसोसिएटेड होती हैं. बट ये जो फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज है ना, दिस इज टिपिकल ऑफ इन्फेक्शन. आइदर योर पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम अ पॉलीमाइक्रोबियल इन्फेक्शन. पॉलीमाइक्रोबियल मीन्स यू हैव योर एंटेरोबैक्टेरियशी एज वेल एज योर एनारोब्स. ठीक है, अदरवाइज क्या होता है कि आपकी हिस्ट्री पे डिपेंड करता है कि आइदर वाज देयर एनी मैनिपुलेशन डन ऑन अ वजाइनल
attack, patient primarily had any other infection जो कि seed करके probably UTI से कहीं आया हो, patient was suffering from typhoid for example या any other infection जो blood से seed करके जो है वो अंदर in utero आया हो, तो ये differentials फिर जो है ना वो सारी different हो जाती हैं. But foul smelling discharge अगर आपके पास patient का आए और still birth हो, तो usually you think about the polymicrobial infections and your gram negative rods, that is Enterobacter. So एक क्वेश्चन किसी ने पूछा था कि कैन सिजेरियन सेक्शन प्रिवेंट दिस इन्फेक्शन. सो इफ यू नो beforehand that your patient is suffering from syphilis and they are non-treated patient, yes you can go ahead for cesarean section, but ये probably आप लोग जब अभी क्लिनिकल्स करेंगे आप देखेंगे कि अब जो है ना बहुत सारी जो एसटीडी की गाइडलाइंस आ गई हैं, उसमें जो रोल ऑफ सिजेरियन सेक्शन है इन प्रिवेंशन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शंस टू द नियोनेट्स वो थोड़ा क्वेश्चनेबल हो गया, इंक्लूडिंग योर हेपेटाइटिस बी, सी, यू नो कपल ऑफ अदर्स. अब ये गाइडलाइंस भी चेंज होती हैं, आपको पता है यूरोपियन गाइडलाइंस होती हैं, अमेरिकन गाइडलाइंस होती हैं. सो आई डोंट वांट टू गिव अ एग्जैक्ट स्टेटमेंट, बट यू कैन गो अहेड एंड रीड अप ऑन द इंटरनेट. तो यस देयर आर सर्टेन इन्फेक्शन जिसमें अगर आपको इफ यू नो प्रायर तो आप या तो ट्रीट करते हैं या यू ऑप्ट फॉर सिजेरियन सेक्शन, बट नॉट इन ऑल केसेस. दैट यू हैव टू रिमेंबर. Okay, thank you so much. Any more question, please? Thank you, Dr. Sana. I think this is end of the session. Thank you so much. Thank you. I have a request one. Kal inshallah at about 10 a.m. we are going to take some pictures. जो लोग Zoom पे बैठे हैं, we will take the pics. At least 20 participants at a time. तो तकरीबन हमारे 4-5 दिन लग जाएंगे daily. Okay? So be prepared. अच्छा तैयार व्यार हो गए. Thank you, girls and boys. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.